Hi guys, I'm Samina Jahangir. I'll be teaching your income tax at Jahangir Tutorials. I'm a lawyer and CS and I have around 10 years of teaching experience. So my duty at Jahangir Tutorials is to teach income tax. And when I'm teaching income tax, I have only one objective. Your concept should be clear. If your concepts are not clear, it is my fault. Okay? If your concepts are not clear, you can blame me. But if you don't complete your paper, if you do not attempt all the questions, if you do not remember the tax slabs, if you don't remember the section numbers, don't blame me. You can blame me for what? For not understanding income tax. My job is to make you love tax. I love tax personally. अगर तुमको टैक्स नहीं पसंद आया at the end of my lectures, you can blame me. Okay, but provided you are with me with my flow and you do what I say. Okay, so trust me on that. Now let's go to your tax subject and we'll see what is your tax subject like. Your tax is of 100 marks, out of which 50 marks is direct tax. Another 50 marks is your indirect tax. Now when we are studying direct tax, we have to do only income tax. बस एक एक्ट पढ़ना है अच्छे से. Okay, indirect tax में you will be studying GST. Now GST and a little bit of customs. Okay, now GST, customs, all of this is what Zubair sir will be taking. I am going to teach you all income tax. In income tax, you all will realize when we study it is vast as compared to indirect tax. Indirect tax is very concise. Income tax is much more in detail. It is vast. Okay, if you are with me, you all will understand how the subject is, how the subject flow is. In today's lecture, my aim is to just see the subject flow of direct tax or income tax. Okay, this is the entire subject flow that we are seeing. So first is residential status. Residential status में अलग-अलग type के residential status होंगे, one being a non-resident, one being a resident and one being not ordinarily resident. Depending on what is your residential status, you will be taxed in India. We are concerned with taxation in India only. पूरे direct tax में हम देखेंगे इंडिया में टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, और अगर भरना है तो कैसे भरना है, कितना भरना है. ओके, अब हमने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस में 3 टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इसको इन डिटेल पढ़ेंगे whenever we do this chapter. Right now we are just seeing subject flow. So this chapter becomes important. This is the base from where you will start. Next is your heads of income. Heads of income में हम पहले देखेंगे income from salary. Okay. Now income from salary. अगर तुम्हारा employer है, employer तुमको कुछ भी देगा, वो हो जाएगा income from salary. So if your employer gives you at the end of the month and some money and he says that देखो ये सैलरी नहीं है, ये तुम्हारी गिफ्ट है, इतना काम किया, ये लो गिफ्ट, सैलरी तुम्हारा 100 रुपया है, 10,000 रुपया तुम्हारा गिफ्ट है, that will also be income from salary. तुमको उसने है ना कमीशन दिया, बोनस दिया, all will be income from salary. So what is the precondition for income from salary? Employer होना चाहिए. Employer तुमको कुछ भी देगा, वो इनकम टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट इनकम कमाओगे अगर तुम्हारा घर है. इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी अ शॉप, इट कुड बी एनी प्रॉपर्टी. Okay, when I say house property, it could be commercial property, it could be residential property. वहां से rent income कमाओगे तो तुमको क्या भरना पड़ेगा, वो टैक्स होगा under this head income from house property.
Okay, any rental income will be taxed under income from house property. Next is income from business profession. Once you become a CS, okay, all your income that you will earn will be a professional income. It will be taxed under income from business profession. Your clients will give you money. That money will not be a salary. It will not be rental income. It will not be any profit. It will be professional income that will be charged under income from business profession. Okay. Next one is income from capital gains. Now understand this. तुमने अगर घर खरीदा 1 करोड़ का लास्ट ईयर और ये साल तुमने 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया, तो तुमको प्रॉफिट हुआ 20 लाख का. ओके, दैट प्रॉफिट और गेन विल बी टैक्स्ड अंडर हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. नाउ what is capital gains? Any profit that you make on selling any capital asset, any profit that you make on selling of capital asset will be taxed as income from capital gain. Another example जो तुम लोग ने देखा होगा, शेयर मार्केट. बहुत तुम 100 रुपए का शेयर आज खरीदते हो, कल तुमने बेच दिया 120 में, 20 रुपया प्रॉफिट हुआ, वो टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. क्या टैक्स होगा? वो 20 रुपया, वो गेन टैक्स होगा कैपिटल गेन्स में. Okay, and the last one, अब हो सकता है there are some incomes that do not fall under any head, but they are money that you have earned, that will fall under income from other sources. कहीं भी फिट नहीं होता है वो, इधर miscellaneous में आ जाएगा. Like for example, I go to Vegas, I go to Goa, I go in a casino, win a lottery or win a jackpot, I get money. It is not under the first 4 heads. वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, दीज आर योर 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड दिस इज वेयर यू विल डिसाइड कि तुम्हारा टैक्स होना है या नहीं होना है. ओके, विल इट बी टैक्स्ड और नॉट विल डिपेंड ऑन दिस, वेदर इट फॉल्स अंडर दीज हेड्स ऑफ इनकम और नॉट. इफ इट डजंट फॉल अंडर द हेड्स ऑफ इनकम, ब्रिलियंट, यू विल नॉट बी टैक्स्ड. सो अंडर हेड्स ऑफ इनकम वी विल अंडरस्टैंड कि जो तुमने पैसा कमाया वो टैक्स होना है कि नहीं होना है. अगर होना है तो कौन से हेड में टैक्स होगा. ओके, 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड अंडर दोज 5 हेड्स यू विल डिसाइड. एंड हर एक का टैक्सेशन अलग होगा, हर एक का टैक्सेशन अलग होगा. फॉर ऑल 5 हेड्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कंप्यूटिंग द टैक्स लायबिलिटी. सो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. ओके मैम, बोलो. can you Okay, okay ma'am, you understood this? You understood the difference but house property and capital gains? yeah. Okay, now next is, as I said, ये 5 heads तुम्हारे हो गए तो तुमको तुम्हारा total income. So for someone like me, I am earning income from 4 heads from the 4 heads. Like I have a rental property, प्रोफेशनल इनकम है मेरा, मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो कैपिटल गेन्स भी है, और कुछ लाइक आई कैन अर्न सम अदर सोर्सेज से भी इनकम. आई कैन हैव सम इनकम फ्रॉम लॉटरी, और आई कैन हैव फ्रॉम गोइंग एंड विनिंग अ जैकपॉट, मेंटेनेंस और ऑफ हॉर्स रेसिंग जो कहीं भी फिट नहीं होगा. ओके, गिफ्ट, मुझे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दे दिया. Okay, all of that will be other sources. So I have income from 4 heads. Okay, I don't have an employer, so I don't have salary income. Now ये 4 head से जो भी मेरा total year का income होगा उसको हम बोलेंगे gross total income. Now this gross total income से I can make some investments, and in that investments I can get a deductions. So what are these deductions? So let's say मैंने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए कमाए. वो 10 लाख रुपए का मैंने जाके ज़ारा में शॉपिंग कर लिया, ज़ारा से शॉपिंग किया, माइकल कॉर्स से किया, एप्पल के मैंने डिवाइसेस खरीद लिए, तो 10 लाख पूरे यूज हो गए. कैन आई टेल द इनकम टैक्स ऑफिसर दैट सर 10 लाख रुपए मैंने कमाए थे लेकिन मैं टैक्स नहीं भर सकती क्योंकि पूरे पैसे मैंने यूज कर लिए? चलेगा क्या? एंड इट इज, आई हैव ऑल द रिसीट्स, मेरे पास सारे बिल्स हैं. मैंने 10 लाख रुपया जो 4 हेड्स में कमाए थे मेरे,
In my case, I had 4 heads of income. I earned it and I used it. Okay, so at the end of the year, when I have to pay tax, I am going and telling the income tax officer, I don't have money, I have used it. चलेगा क्या? No. No, you will say नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा. तुमने पैसा कमाया है, तुमको टैक्स भरना है. But what I do, I make investment in PF. Okay, Provident Fund. Okay, सुना होगा PF में लोग इन्वेस्ट करते हैं. Okay, और there are tax saving schemes. If you all would have seen those hoardings, tax saving schemes या ads में आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में tax saving schemes है. मैंने वो स्कीम में डाल दिया. ओके, इसके अलावा मैंने है ना आई गेव मेडिकल इंश्योरेंस मैंने प्रोक्योर किया है, उसके लिए मैंने पैसे दिए हैं. ओके, नाउ दिस द गवर्नमेंट recognizes as a deductible expense. This the government recognizes as a deductible expense. एंड देन दे विल से ओके, कितना तुमने पीएफ में इन्वेस्ट किया, ऐसे 1.5 लाख कर दिया. अच्छा, कितना तुमने टैक्स सेविंग स्कीम में डाला, ऐसे अनदर 1.5 लाख कर दिया, तो मेरे 3 लाख गए. तो 10 लाख में से 3 लाख का मुझे डिडक्शन मिल गया. और मुझे पे कितना करना पड़ेगा टैक्स? ओनली ऑन माई 7 lakhs आई विल हैव टू पे द टैक्स. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इफ आई गो एंड डू अ शॉपिंग or I go on a vacation and spend 10 lakhs, I will not get any benefit of the money that I spent. However, if I make investments or if I do donations, प्रधानमंत्री अभी पीएम केयर्स है ना, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड के लिए स्टार्ट किया पीएम केयर्स में अगर मैंने डोनेशन दिया 10 लाख रुपया, पूरा का पूरा अमाउंट आई विल गेट एज अ डिडक्शन. आई विल नॉट हैव टू पे टैक्स ऑन एनी अमाउंट बिकॉज आई हैव स्पेंट इट इन द करेक्ट वे. बट दिस 10 lakhs आई गो एंड गिव इट टू माई फ्रेंड हु नीड्स मनी. मेरे बेस्ट फ्रेंड को 10 लाख की जरूरत है, मैंने दे दिया, मुझे डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा. 10 लाख में फिर भी टैक्स भरना पड़ेगा. लेकिन मैंने पीएम केयर्स में डाला, पूरा 10 लाख पे मुझे डिडक्शन मिल जाएगा. सो बेसिकली what we are trying to achieve by these deductions is make investments which the government recognizes so that I can get a benefit out of it. This is deductions. Once I get deductions, I can then compute what is my total taxable income. तो इसके ऊपर हम सम्स करेंगे. टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे पता चलेगा? सारे हेड्स ऑफ इनकम हम ऐड करेंगे, डिडक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी हुआ वो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगा. ओके, इसके अलावा व्हाट वी विल बी स्टडीइंग इज एग्जेम्प्ट इनकम्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज एग्जेम्प्ट इनकम्स? पैसा कमाओगे, टैक्स नहीं भरना है. ऐसे कैसे हो सकता है? पैसा कमाओ, टैक्स नहीं भरना है. बेस्ट एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, जो फार्मर्स अगर लाखों करोड़ों में भी कमाएंगे ना, उनको टैक्स 1 रुपया नहीं भरना है. एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्स फ्री. दैट इज वाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ओके लॉट ऑफ एक्टर्स वांटेड टू बी डिक्लेयर्ड एज फार्मर्स. लाइक अमिताभ बच्चन सेड आई एम अ फार्मर. ओके, व्हाई? बिकॉज द इनकम that a farmer earns through agriculture is exempt income. Also, agricultural land only a farmer can own. I am not a farmer, okay, nor are my ancestors farmers. In that case, I cannot even buy agricultural land. To buy agricultural land, I have to be a farmer or my descendants have to be farmers. Okay, that's why all the income that is income that a farmer earns, any agricultural income is exempt from tax. So ऐसे बहुत सारे incomes है. Okay, let's say award, पद्मश्री इसको मिला है ना, पद्म भूषण कंगना को. When you get that Padma Bhushan award, you also get money along with it. Now that money is exempt from tax. Do you know? अभी Nobel Prize awards were declared. Okay, Nobel Prize awards were given. एक नोबेल प्राइज ओके अवॉर्डी को मिलता है 8 करोड़ रुपीज. 8 करोड़ इन कैश. इट्स अ कैश अवार्ड ऑफ 8 करोड़. सो दिस ईयर देयर वाज फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया है बिकॉज समवन डिड अ रिसर्च ऑन ब्लैक होल. देन वन इन मेडिसिन समवन गॉट जिसने रिसर्च किया ऑन हेपेटाइटिस सी वैक्सीन. And then there was another Nobel Prize given for literature and economics. Now all of these Nobel Prize awardees are going to get 8 crores. What the government says that तुमने इतना महान काम किया है, okay, you have earned money and the government has awarded you.
you are going to get that whole income is exempt. Now let's say Jahangir Tutorials is awarding giving an award to the topper. Now let's say 2 लाख रुपया अगर जुबैर सर ने अवार्ड डिक्लेयर किया, तुमको लगता है उस पे गवर्नमेंट तुमको टैक्स रिलीफ देगी, टैक्स एग्जेम्पशन देगी? हाँ नहीं. बट अगर तुमको गवर्नमेंट के पास से अवार्ड मिला है, उसके ऊपर पूरा मार्क है. यू सी द डिफरेंस. The exempt incomes are incomes which the government recognizes and tells you that okay, since we are recognizing it as an exempt income, you don't have to pay any tax. So this again we are going to study in one chapter कि कौन सी incomes exempt है. ऐसा कोई income है कि हम पैसा कमाएंगे और हमको tax नहीं भरना है? हाँ है. Okay, तो वो incomes भी we will study that in detail. Next we will be studying is clubbing of incomes. Now what is this clubbing of incomes? Before we even go into the depth of this clubbing of incomes, do you okay, let me ask you, अगर तुम पैसे कमा रहे हो तो तुमको टैक्स भरना है. हाँ मैम, ऑब्वियसली अभी आपने इतना सब सिखाया, 5 हेड्स ऑफ इनकम. ओके, फिर टैक्स, उसके ऊपर डिडक्शन ले लो. एग्जेम्प्ट इनकम है तो उस पर टैक्स मत भरो, बाकी सब पे तो टैक्स भरना है. तो तुमको टैक्स भरना है. अब ये टैक्स किसको भरना है? इफ अ माइनर इज अर्निंग मनी, डज द माइनर इज द माइनर लायबल टू पे टैक्स? अभी आजकल बच्चे लोग टीवी पे आते हैं, दे कम इन मूवीज, दे अर्न लैक्स ऑफ रुपीज. ओके, कितने सारे टीवी सीरियल्स में चिल्ड्रन कम. यू थिंक दे विल नो how to what is income tax? Forget filing the returns and paying the tax. Do you think they will even understand all this? I am talking about children who are coming, minor children. Okay, they are earning money. You think they will understand how to pay, how this whole income tax works? Yes, no? No, ma'am. No. So is it fair to say that listen, अब तुमने टैक्स नहीं भरा, छोटे से बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, और उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे? Obviously not. So what they have conceptualized something called clubbing of income. Clubbing of income is the minor's income is clubbed with that of the guardian. Minor's income is clubbed with that of the guardian. Okay. Now इसके अंदर ही we will study. Let's say, so you understand clubbing of income, कोई और कमा रहा है, टैक्स कोई और भर रहा है. It is clubbed with the guardian's income. Similarly, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ. बहुत बार क्या होता है, हस्बैंड का अच्छा खासा बिजनेस है, वो क्या करता है, स्पाउस को, उसकी वाइफ को वहां दिखा देता है एज अ डायरेक्टर, एज एनी पोजिशन, एज सम ऑफिसर इन द कंपनी, एज अ मैनेजर इन द कंपनी, बट दैट वाइफ इज सिटिंग इन द हाउस एंड मेकिंग चपातीज. ओके, नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग बॉस ठीक है करो ये, हम ना नहीं बोल सकते. इफ आई एम द ओनर ऑफ अ बिजनेस, आई वांट टू गिव माय स्पाउस सम मनी, हु आर यू टू स्टॉप मी? द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप यू ऑन दैट. द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट लिसन, दैट स्पाउस, ओके, उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? 0, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके पास इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, या वो स्किल सेट नहीं है टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी, बट तुम उसको दे रहे हो. हम क्या करेंगे, उसका जो तुम उसको पैसे दे रहे हो, इट विल बी क्लब्ड टू योर इनकम ओनली. इट इज क्लबिंग ऑफ इनकम. स्पाउस का इनकम ऐड हो जाएगा दूसरे स्पाउस के साथ, माइनर का इनकम ऐड हो जाएगा गार्डियन के साथ. दिस इज क्लबिंग ऑफ इनकम. ओके, वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. ना इसके अलावा what we will be studying is now set off and carry forward. अंडरस्टैंड दिस. अभी तक तो हम इनकम इनकम इनकम, कब से हम इनकम ही बोल रहे हैं ना सब जगह, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एक्सेट्रा, एग्जेम्प्ट इनकम्स, टैक्सेबल इनकम्स. जरूरी है इंसान को हमेशा प्रॉफिट ही हो क्या इनकम ही हो? लॉसेस भी तो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लॉसेस में जाती है. ओके, तुम्हारा पूरा रिलायंस, अनिल अंबानी का जो रिलायंस था पूरा डूब गया. वाई? बिकॉज इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस. ओके, यू पिक अप any of these companies, Kingfisher, huge amount of losses, Jet Airways, huge amount of losses. Okay,
Now these companies, if you see, they have huge amount of losses. तो उनका तो इनकम तो भूल ही जाओ, लॉस चल रहा है. इनकम मतलब क्या, प्रॉफिट्स हुआ एक टाइप का. ओके, कैरी फॉरवर्ड हम क्या करेंगे ऑफ लॉसेस. सत्यम था, सत्यम, महिंद्रा took over सत्यम. Okay, so now in all of this, if you see, there is not so much of income, but we are going to talk about losses. When we study income tax, we will also have to see if there are losses made and how are losses treated in income tax. So what happens, okay, and why losses become so important is, let's take an example of Satyam. Satyam was a loss making company. Ramalingam Raju karke, he was the promoter of Satyam, and there was a scam, there was a huge amount of loss in the books. Mahindra ने उसको take over कर लिया. अब तुम क्या सोचोगे, if you were the owner of Mahindras, why would you take over a loss making company? बहुत सिंपल है. एंड आजकल बहुत सारी कंपनीज ये करती है. अगर कंपनी ए में लॉसेज है, कंपनी बी में प्रॉफिट्स है, कंपनी बी टेक ओवर कर लेगी कंपनी ए को एंड इट विल सेट ऑफ द लॉसेज. सो इफ आई हैव अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज, अनदर कंपनी हैज अ लॉस ऑफ 70 रुपीज. अर्लियर मुझे 100 रुपये पे टैक्स भरना था. अब क्या होगा, उसका लॉस मेरे प्रॉफिट के साथ ऐड हो जाएगा. तो उसका लॉस 70 है, मेरा प्रॉफिट 100 है. मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी उसका लॉस आई विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम माई प्रॉफिट्स. आई विल हैव टू पे अ टोटल टैक्स ऑफ ओनली ऑन 30 रुपीज. ओके, 100 माइनस 70, तो ये क्या हो गया, हमने सेट ऑफ किया. सिमिलरली ये तो अगर टेक ओवर होता है, वॉट इफ दिस ईयर आई हैव मेड अ लॉस, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट है, हो सकता है. सो ये साल का लॉस मुझे क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है. लॉस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉस क्या करता है, तुम्हारा प्रॉफिट को सेट ऑफ करता है. ओके, सो इन द 5 हेड्स ऑफ इनकम दैट वी स्टडीड, देयर कुड बी अ प्रॉफिट एंड और अ लॉस सिचुएशन. तो सैलरी में तो तुमको लॉस कभी हो नहीं सकता है. कभी तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे पास से पैसा नहीं लेगा, है ना, तुमको कम सैलरी देगा, वो लॉस नहीं है. बट लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी, मेरा हाउस पे मैं EMI 5,000 का भर रही हूं और मेरा रेंट इनकम 2,000 ही आ रहा है, तो 3,000 का तो लॉस हो गया ना. वापस सुनो, मेरा हाउस प्रॉपर्टी, वी आर सीइंग द सेकेंड हेड ऑफ इनकम. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट हेड, देन सेकेंड हेड में अगर मेरा EMI, द इंटरेस्ट दैट आई एम पेइंग इज 5,000, the rent I'm earning is only 3,000, so 2,000 is a loss. This loss has to be set off. Similarly, income from business profession, हर दिन हम पढ़ते हैं इतने losses चल रहे हैं, बैंक्स में losses हो रहे हैं. Okay, so that is income from business profession. The loss, what do you do with the loss? You will set it off with your other heads of income or carry forward next year. ये साल का लॉस तुम नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो. ओके, या समझो ये साल मुझे प्रॉफिट हुआ है, लास्ट ईयर लॉस था, तो मैं सेट ऑफ करूंगी. ओके, सिमिलरली कैपिटल गेन्स, हर बार स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही होता है? नहीं मैम, कभी कभी लॉसेस भी होते हैं. कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफन लॉसेस ही होते हैं. ओके, सो आई कैन सेट ऑफ. सिमिलरली अदर सोर्सेज, all this we will have to study in detail and figure out कि how do you treat losses, that we will study in this chapter. Okay, now next one, then once we have studied all of this, we can then go on tax assessment. अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनकम कैसे ढूंढेंगे, प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, लॉस कैसे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लॉस का क्या इफेक्ट होगा. वंस वी आर डन विथ एवरीथिंग, वी विल गो ऑन असेसमेंट, ऑन हाउ टू डू असेसमेंट एंड हु विल, हर एक. ओके, अब मुझे ये एक चीज बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर्स सबका असेसमेंट करने बैठेंगे? नहीं, इतने थोड़े से इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, हम लोग तो करोड़ों लोग हैं. तो असेसमेंट हमको ही करना पड़ेगा और हमको ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. सो व्हेन we do assessment, this is what assessment we are doing, tax assessment. Okay, and this tax assessment we will learn how to do for individuals, obviously, but as professionals you should know of companies, LLPs, partnership firms, trust. Okay, इसके अलावा क्लब्स सुना है, देयर आर सो मेनी, मफतलाल क्लब हो गया,
CCI हो गया, ओके, देयर आर लॉट ऑफ दीज क्लब्स जिसके तुम मेंबर बन सकते हो. तो दे आर नथिंग बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. सो वी विल स्टडी दिस एज वेल. अब HUF हो गया, फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म. So we are going to study how to do assessment of such individuals as well. Once we have learned to do the assessment, then we will understand tax liabilities. है ना, टैक्स लाइबिलिटी, किसको कितना टैक्स भरना है, इंडिविजुअल पे कितनी टैक्स लाइबिलिटी है, कंपनी पे कितनी टैक्स लाइबिलिटी, हर एक पे अलग अलग है. ओके, कंपनीज पे 25% है टैक्स लाइबिलिटी, LLPs पे 30% है, ट्रस्ट पे 30% है, बट अगर तुम चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो 0 है. सो वी विल हैव टू असेसमेंट ऑफ द टैक्सेस वी विल स्टडी, एंड देन वी विल स्टडी द टैक्स लाइबिलिटीज ऑन ऑल ऑफ दिस. ओके, अब टैक्स लाइबिलिटी के अंदर ही आता है कि टैक्स तुमको पे कैसे करना है, एंड ऑफ द ईयर पे करना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे करना है, ड्यूरिंग द ईयर पे करना है, कब करना है. ओके, सो टैक्स लाइबिलिटी के अंदर वी विल स्टडी एडवांस टैक्स. ओके, TDS, कभी सुना होगा ये वर्ड तुम लोग ने, TDS काटा है, TCS एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज एडवांस टैक्स? अभी we will study this tomorrow when we go in detail of what is income. पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इनकम होता क्या है. अब जब इनकम तुम कमाते हो, ओके, लेट्स से मेरा इनकम फॉर ऑल पर्पसेस, मेरा एक महीने का इनकम 1 लाख है. ओके, मुझे 1 लाख रुपया मैं कमाती हूँ हर महीने. अब ये जो 1 लाख रुपया मैं कमाती हूँ उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है. अब ये टैक्स है ना, मैं कब भरूंगी, एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मैं पूरे साल भर का इनकम देखूंगी. 12 लाख हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैठी रहेगी क्या, अब समीना पैसे देगी तो हम लोग चलाएंगे, देश चलाएंगे, और समीना जैसे लोग टैक्स भरेंगे तब हम देश चलाएंगे. नहीं, व्हाट द गवर्नमेंट सेज दैट तुम कमा रहे हो ठीक है, लेकिन तुम जैसे कमा रहे हो तुम टैक्स भरते जाओ, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, बिकॉज आर इनकम, ओके, पे हम टैक्स भरेंगे, वो टैक्स गवर्नमेंट के लिए इनकम हो जाएगा. So the government is going to receive the tax, or they will devise a way to earn the tax while we are earning the income. Okay, we will study this in detail. And the last part is, ये सब हमने ढूंढ लिया, टैक्स लाइबिलिटी ढूंढ लिया, असेसमेंट कर लिया हमने. लास्ट पार्ट हम देखेंगे रिटर्न फाइलिंग, कि ये सब करने के बाद हमको रिटर्न फाइल करना रहता है ना, रिटर्न ऑफ इनकम. बेस्ट चीज है ये रिटर्न ऑफ इनकम. ये कब फाइल करना है, किसको फाइल करना है, ओके, और कैसे फाइल करना है, पूरा हम देखेंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट यू नो हाउ टू फाइल योर टैक्स रिटर्न्स. और ये तुमको लाइफ में हमेशा जरूरत होगी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. पैसे कमाओगे तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और तुमको कोई CA के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद बैठ के कर सकते हो. ओके, ये देख लो पूरा तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स. 50 मार्क्स के लिए तुमको क्या क्या करना है. ओके, नाउ इफ आई वाज यू, ओके, आई कैन सी दैट चैप्टर 2 इज वेरी बिग, दैट इज हेड्स ऑफ इनकम. हेड्स ऑफ इनकम अगर तुम देखोगे, उसके अंदर 5 चैप्टर्स. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू मार्क फॉर यू चैप्टर्स विच आर having good amount of weightage, okay, in terms of marks, but are very easy and very easy to score, okay, versus chapters which mark weightage is not as much but they are very vast. Okay, so तुम्हारा टारगेट क्या है, you have to crack the paper. Okay, तुमको 50 मार्क में से कम से कम मतलब you should at least get 35 marks. Basic 35 मार्क्स तो लाने. ऑब्जेक्टिव है, आंसर भी उधर ही है, क्वेश्चन भी उधर है, आंसर भी उधर है, तुमको सिर्फ टिक मार्क करना है. ओके, सो देखो ये सब में से रेसिडेंशियल स्टेटस बेबी चैप्टर. ओके, यू गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी वेल. इट्स वेरी इजी, इट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम. ओके, एंड बहुत ईजी है, और इसका मार्क वेटेज भी अच्छा खासा है. ओके, ना 50 मार्क में से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस.
3 to 4 marks is huge amount of marks. Okay, 3 marks सोचो मत के it is too less, it is good amount of marks. Now heads of income, this will be at least तुम्हारा 25 marks will be from this chapter alone. Now आधा पेपर तुम्हारा heads of income है, तो don't think you can leave it and go. Okay, you can't leave this, you have to do this properly. But इसके अंदर भी I will mark and tell you which chapters you now 25 marks will not be under from one head of income ना 5 heads में होंगे. तो तुमको क्या करना है, चैप्टर 2 अच्छे से करना है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जितना टाइम तुम चैप्टर 2 chapter 2 एक chapter 2 is important. Why? Because it is very small, very easy to crack. Chapter 4 and chapter 5 easy chapters. तुम इनफैक्ट एक दिन में ये तीनों chapters कर सकते हो. Okay, chapter 1 is very vast. Chapter 1 and 3 are vast. When I say vast doesn't mean it is difficult. बड़ा है, ज़्यादा topics है, okay, but difficult नहीं है. टैक्स में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, टैक्स में सिर्फ वास्ट है. ओके, एज आई सेड, जब तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तुमको चैप्टर 1 अच्छे से करना है. चैप्टर 2 में द 3 हेड्स ऑफ इनकम विच आई मार्क, यू विल स्टडी इट वेरी वेल. नाउ इसके बाद चैप्टर 6 वेरी इजी बेबी चैप्टर, इसमें भी काफी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे. 3 मार्क तो आएंगे. सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से भी 3 मार्क्स आराम से आ जाएंगे. ओके, I'm marking only the important and easy chapters. Important and easy chapters. Okay. Now this again, tax liabilities, advanced tax and TDS. Very easy. इससे भी अच्छे खासे 2-3 मार्क तो आ ही जाएंगे. Now दूसरे जो easy है, now see I have not marked deductions. Deductions is very vast. इसके भी 5 मार्क आ सकते हैं, but it is very vast. It is not difficult, it is vast. So we will keep all this. Okay, we will study all this. While you're doing it with me, I would expect that while I am teaching you, हमारे जैसे lectures होते जाएंगे, तुम वैसे ही पढ़ाई करते जाना. Don't wait for the last minute. Tax is one subject जिसमें concepts बहुत सारे हैं. Okay, बहुत easy subject है, लेकिन vast है. ओके, ये जो चैप्टर्स मैंने मार्क किए हैं वो तो तुम अच्छे से करने ही वाले हो. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स सी. नाउ दिस इज योर एंटायर सब्जेक्ट. ये प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, कीप अ, एंड आई विल शेयर दिस ऑन द ग्रुप एज वेल. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर द कोर्स ऑफ द सब्जेक्ट. इसके अलावा आई विल नाउ आस्क यू ऑल टू हाउ डू यू अप्रोच द सब्जेक्ट और पढ़ना कहाँ से है. Since it is an objective paper, पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए हर एक के लिए आई विल गिव यू जेटी के तुम्हारे नोट्स मिल जाएंगे. हर एक लेक्चर के पहले तुमको जेटी के नोट्स मिल जाएंगे. ओके, इसके अलावा तुमको बांगर खरीदनी पड़ेगी. प्लीज गेट बांगर ऑब्जेक्टिव्स. बहुत एकदम इट्स अ कंसाइज बुक फॉर देयर आर अराउंड 1500 MCQs. okay, once you do this 1500 MCQs you will not have a problem. okay, तुमको कुछ भी your concepts will become clear and we will solve the MCQs. and yeah, the banger that I have is a plaster. Is that okay? that is fine. ओके, आई विल टेल यू ऑल अगर उसमें चेंजेस करने हैं तो कौन से पार्ट में चेंजेस या अमेंडमेंट्स आए हैं. ओके, एंड गेट योर मॉड्यूल. वी विल स्टडी फ्रॉम द मॉड्यूल. ओके, सो मॉड्यूल, इवन इफ समीना सेज, जुबैर सेज, फातिमा सेज, एनीवन इन द वर्ल्ड सेज दैट मॉड्यूल मत देखो, मॉड्यूल तो तुम्हारी बाइबल है. ये CS इंस्टीट्यूट बोल रही है तुमको मॉड्यूल देखना ही है. ओके, दैट इज योर बुक दैट द इंस्टीट्यूट हैज गिवन यू, सो यू कैन, नोबडी कैन से मत देखो. ओके, यू कैन रिफर अदर बुक्स बट मॉड्यूल तुमको देखना है कि कवर हो रहा है कि नहीं. बिकॉज समीना मैम कैन स्टडी एंड टीच यू एनीथिंग.
You have to see that module say it is relevant or not. Okay. This is how we are going to approach for every subject, for every topic. You will see the JT notes, you will attend the lecture, notes देखोगे, Banger objective solve करेंगे. Okay, we will, after you solve the MCQs for homework, we will discuss it in the next lecture. Once you discuss the MCQs, I am not going to discuss all the MCQs. Only the ones which are tricky, which there are doubts. Okay, we will discuss only those objective MCQs. And you will always keep your module handy to see whether we are covering the entire topic or not. Okay, any questions you all have? Please ask. Okay, so tomorrow we will be starting with basic concepts of income tax.